हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है। 15वें दिन की शुरुआत हो चुकी है। रात आप लेक के किनारे कैंपिंग की सी ते हुण आप इत्थों आपदा चाह पानी पी के हानले पिंड तक जावांगे। ते वो बैठे बाई वर्गे ते हानले तो देखांगे की माहौल बनता अज दा। हाँ जी बड़े भाई, किवें रहा रात इत्थे माहौल ठंड च? थोड़ी बई ठंड वाली सी, हवा हवा ज्यादा वाली करती। चलदी ना, ऐ लगदा टेंट हाँ। पट्टू है ना ये। बाकी सुबह तो ठीक हो गया, रात ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਠੰਡ ਸੀ। हाँ ते इधर अपना ਹੋਰ ਚਾਰ ਦੋ ਰਜਾਈਆਂ ਦੋ ਕੰਬਲ ਹਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਿੱਘ ਜੀ ਮਸੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚਿਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਚਲਾਊਗਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਚੜੂਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਚੜਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਖੱਡੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੈ ਪਾਈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਕੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਦੂਗਾ ਕਿ ਗਾਂਵ ਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਧਰਾ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਕੂ ਮਾਰੀ ਲੰਘ ਜੂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉੱਤੋਂ ਮੋੜ ਲਈ, ਉੱਤੋਂ ਮੋੜ ਦੋ ਨਾ ਇਹ। ਉਹ ਕੰਮ ਮਗਲੇ ਉੱਤਰ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਚਾ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਆ ਨਾ ਚੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲਾਉਂਗੇ ਲੋਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈ ਲੋ ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ ਉੱਤਰ। ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਇਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਚੜ ਜੂ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਮੋੜ ਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੇਦਾ ਗਰਮ ਛੱਡ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਡ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਬਾਈ ਬਿੱਲੂ ਜੀ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਡ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਈ ਰੋਡ ਚੂਜ਼ਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਊ ਹੈ ਪੂਰਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਘੈਂਟ view, ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਲੇਕ ਜਾਣੀ ਸਵਾਦ ਆਊ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜੂਗੀ। ਹਾਂ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂ ਚਾਰਜਰ ਲਾਈ ਯਾਰ। ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਗਏ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਚਾਰਜ। ਕੱਢ ਦੋ ਇਧਰਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਬਈ ਕੱਢ ਦੇ। ਉੱਪਰਲੀ ਚਲਾ ਦੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੱਗੂ ਨਾ ਇਹ। ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਮਰਾਕ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਰੈਲੀ। ਹੋਮ ਸਟੇ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਡ ਜੀ। ਹਵਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਪਹਾੜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਏਰੀਆ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਬਾਈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਐਸ ਹੱਥ ਲੇਕ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚੂਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ਲ 15 ਬਾਈ। ਚੂਜ਼ਲ 15 ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੀਜਿੰਗ ਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ ਓਏ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਗਏ। ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਪਈ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਲਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ ਯਾਰ।
और में जिंदगी की शाम आ जाए। ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक काम उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झूठा, उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा, उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों में आखिरी गोली सांस तक ला। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रिजांगला की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजांगला की लड़ाई याद करके थर्रा उठता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशूल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमांड को चुशूल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में 13 कमाओं ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशूल में एकत्रित हुई। यहीं चुशूल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की, रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लाटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लाटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत
फ्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लेटून कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें, ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हवाई नंबर 7 और नंबर 8 पेट्रोल पर सामने से हमला बोल दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रखे हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटे सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया, ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां के चरण में अपने प्राणों की आहुति दी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भी भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को बिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे
लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में 13 कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है, जिसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर सुपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एम. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेना। ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਫੋਟੋਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਾਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆ, ਨੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜਾਂਗਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਟੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋ ਮਾਈਲ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਗਾਲਾ ਪਾਸ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ 15,260। ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਡੁੱਪਾ ਅੱਜ ਕੁੱਟ ਖਾਊ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਗਾ ਪਿੰਡ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਨਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਹਨਲੇ ਪਿੰਡ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾਗਾ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੇਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਨਲੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਨਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇੜੋਂ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ।
ਤੇ ਹਨਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਕੋ ਤਾਬੋ ਵਰਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਨੂਪੇ ਹਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਤੇ ਆਹ ਬਸ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂਪੇ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਚਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੋਡ ਅਮਲਿੰਗਲਾ ਪਾਸ। ਇੱਥੋਂ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਨਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ, ਕਾ ਹਾਨਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਲੈ ਗਿਆ। 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਨਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਬਿਰਨੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ 3 ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਰਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਰਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਘੁੰਮਦੀ ਉਧਰ। ਯਾਰ ਵਿਊ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਯਾਰ।